कौन कौन ज्वाइन किया? हाय नैन्सी, हाय आस्था, हाय नम्रता, गुड आफ्टरनून। और भी है, हाय मन्नत, Pranati has joined, Soumya has joined, Akash has joined, Ayushi, Spandan is also there, Arush. Okay, so before starting for today's class, कल का थोड़ा रिवीजन कर लें? हाँ जी? Yes. Okay, so I have questions. सबसे पहले आरुष का नाम दिख रहा है, तो आरुष गुड आफ्टरनून। APD कैंटोल कौन है? क्या किया था? Which year? Founder of taxonomy in 1813. Founder of taxonomy नहीं, he gave the term Term taxonomy. taxonomy 1813. प्रणति आंसर कर रही है, मैंने आरुष से पूछा था। आदित्य आप हैं यहाँ पे? Yes, ma'am. हाँ जी, तो what is the contribution of Carolus Linnaeus? Yes, can you tell me the contributions कि Carolus Linnaeus ने क्या क्या किया था? आदित्य? ओके, किसी और को पता है? Ma'am. कौन बोल रहा है? नाम बताइए। Astha. आस्था। Yes, आस्था, tell me. Ma'am, firstly, he wrote the book Systema Naturae, in which he stated the classification. Binomial classification, very good. Nomenclature बोल दो actually. Then He also known as father of taxonomy. Then He has written the book Species Planetarium. okay, okay. Arush का first class है. Okay, fine, no issues. And yeah, Subhashis has also answered father of taxonomy, Systema Naturae, Species Planetarium, and one more thing is there. Last class में बताइए. Taxonomy hierarchy. Yes, he is also given the taxonomic hierarchy. Very good. Okay, ICBN का full form कौन बताएगा? पूजा, tell me. Anybody else can tell me? Nancy, ICBN का full form? International Code of Botanical Nomenclature. Yes, it's not binomial nomenclature, Subhashish, it's botanical nomenclature. ICBN, आदित्य ने भी सही बताया है. ICBN क्या है? International Code of Viral Nomenclature. Students, kindly mute your audio, please. And one more is there, ICNB or ICBN. उसका क्या है? International Code for Bacterial Nomenclature. Bacteria. Perfect. Okay. What else? Julia Huxley, what did she do? कोई एक जना बताएगा. नयन, can you tell me what is नयन कौन है? नयन बताएगा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, नयन बताइए. Julia, if you want, you can message it to me also. Neosystematics. Okay, perfect. 1964 मेयर क्या किया था? आकांक्षा? Some defined taxon as a taxonomic group. Yes, it's basically defined taxon. It's there on the screen only. सबसे पहली line है यार. Okay. Taxon was introduced in the year 1964. 56. Screen देखो बच्चों, be little attentive. 1956. Yes, by whom? Akash. By ICBN. Okay. ICBN ने पहली बार दिया था taxon in the year 1956 and Mayer in the year 1964 defined what a taxon or a taxonomic group stands for. ठीक है, फिर हमने थोड़ी सी हायरार्की पढ़ी थी कल. Yes, ma'am. Yes, कोई बता सकता है? अवनी, can you tell me the hierarchy बेटा? It's domain, kingdom, phylum, class, order, family, genus, and species. And species. Perfect. Okay, so अभी I'll continue. Starting होता है domain से, then you have kingdom, then we have phyla,
क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। अब एक वेरिएशन है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, करेक्ट? वो कहाँ पे आता है? फाइलम और डिवीजन। तो ये जो हम लोग हायरार्की देख रहे हैं अपने सामने स्क्रीन पे अभी, दिस इज फॉर एनिमल्स पर से। अगर सेम हायरार्की को मैं प्लांट में डालूंगी तो फाइलम चेंज होके डिवीजन हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा? डोमेन, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और लास्ट में आपका आएगा स्पीशीज। याद रहेगा सबको? ओके अब आई वॉन्ट यू गाइज टू डू वन थिंग। एक पेन लीजिए, एक पेपर लीजिए मेरे सामने अभी और ये हायरार्की को लिखिए। इसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि क्या लिखना है, ठीक है? तो हम लोग पूरा एक एनिमल हायरार्की डिस्कस करेंगे अभी, लाइक हमारा ह्यूमंस का जो हायरार्की है, वी विल डिस्कस द एंटायर थिंग राइट नाउ। ओके, इज इट क्लियर? Yes. इज ma'am. एवरीबडी राइटिंग इट डाउन? Yes, ma'am. So just write down this for now. Once I explain all of this, उसके बाद में हम लोग humans का एक बार hierarchy discuss करेंगे. And what are the changes that has happened also we will discuss now. ठीक है? तो पहले you've written it down everybody. मैं आगे बढ़ूँ. First is domain. फिर आता है kingdom. Then there is phylum. Then there is class, order, family, genus and species. Clear? Yes, ma'am. Okay, done. Yes, ma'am. Next. Yes. Now what is the species? Species, no, it is the lowest taxon. सबसे छोटा रैंक एक species का है. Species से नीचे कुछ भी नहीं है. अब उसके ऊपर के रैंक होंगे सारे, ठीक है? The category in the biological classification, it is the smallest taxon or the smallest category. So the basic unit of taxonomy is what? Species. ये question आता है. What is the basic unit of taxonomy or what is species? It is a group of individuals resembling one another in all major vegetative and reproductive characteristics. अब एक बात करते हैं, ठीक है? If one snake lays eggs, ठीक है? तो अगर एक snake अंडा दे रहा है तो दूसरा सांप, it cannot do anything else. It will also lay eggs. That means their reproductive characteristics are same. If one human is giving birth to another, another human, then there is no possibility कि कोई और इंसान अंडा देगा. They will also reproduce. Okay, they will also give birth to the next generation. So this is called as species. इनका सबका reproductive characteristic एकदम same होता है, ठीक है? Next. In 1964, Ernest Mayr defined species as a group of potentially interbreeding population that are reproductively isolated from other such groups. उसका मतलब क्या है कि एक species का member उस same species के किसी दूसरे member के साथ reproduce कर सकता है, but किसी और species के member के साथ reproduce नहीं कर सकता है, ठीक है? We have, हम लोगों के पास interbreeds हैं, correct? कि dog है ना, मतलब ये donkey है ना, horse का होता है. तो these are exceptions which हम लोग बायोलॉजिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं लैब में, बट जनरली अगर हम बात करें तो एक ऑर्गेनिज्म, एक स्पीशीज का दूसरे ऑर्गेनिज्म उस सेम स्पीशीज के साथ ही रिप्रोड्यूस कर सकता है. क्लियर है सबको ये बात? Yes, ma'am. ठीक है? तो ये बात किसने बोली थी? 1964 अर्नेस्ट मेयर वाज द वन हु टोल्ड दिस थिंग, एंड द टर्म स्पीशीज वाज गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम बाय जॉन रे. ओके, एग्जाम्पल हमको पता है ना, आवर स्पीशीज इज सेपियंस, राइट? होमो सेपियन. तो पहली बार स्पीशीज नाम दिया किसने था? जॉन रे ने. ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो हु डिफाइंड स्पीशीज एज अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन? It was Ernest Mayr. And who gave the term species? It was John Ray. Correct. These two terms are again important. तो अगर मैं इस चैप्टर में देखूं तो मैंने कैंडोल, I know Julia Huxley, I know Carlos Linnaeus, I know Ernest Mayr, and I know John Ray. There are 5 names that you have to be aware of in this chapter. इस चैप्टर में से ही 5 नाम हमको पता होने चाहिए. क्लियर है? Yes, ma'am. सबको Yes, क्लियर ma'am. है? एक दो नहीं. I want more people to reply. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes. Okay. Next, ये species हो गया. Species के बाद आता है genus. Okay. हाँ, तो genus क्या होता है? Genus मतलब similar species का एक group.
अभी अगर हम लोग ह्यूमंस को देख रहे हैं तो होमो, उसके अंदर काफी सारी चीजें आते हैं ना, जैसे कि अपना होमो हैबिलिस आ गया, होमो सेपियंस दैट इज अस, ठीक है, होमो इरेक्टस, देयर आर 3-4 और मल्टीपल स्पीशीज इनसाइड द सेम जीनस। तो जिनके मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है उनको हम लोग जीनस बोलते हैं, ठीक है। सो ग्रुप ऑफ स्पीशीज व्हिच आर रिलेटेड टू ईच अदर, they have common characteristics and they have evolved from a common ancestor, इसको हम लोग बोलते हैं मतलब जीनस, और एग्जाम्पल बीइंग होमो, ठीक है। फिर जीनस को अगर हम कंबाइन करेंगे खूब सारे, तो असेंबली ऑफ रिलेटेड जेनरा, दैट मींस अगर बहुत सारे सिमिलर जीनस है उसको साथ में रखेंगे तो वो बनेगा फैमिली। इन ह्यूमंस आवर फैमिली इज होमोनिडे, ओके सॉरी, हमारा स्पीशीज कौन सा है, सेपियन, जीनस है होमो, फैमिली है होमोनिडे, ओके। उसके बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या है, अगेन ग्रुप ऑफ फैमिली इज कॉल्ड एज ऑर्डर। फैमिलीज विच आर रिलेटेड, मतलब उनके बीच में कोई ना कोई कनेक्शन तो है, ऐसी फैमिलीज जो आपस में कनेक्टेड हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। हमारा ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा, ठीक है। ऑर्डर के बाद आता है क्लास। क्लास कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। उसके अंदर हम लोग आते हैं मैमल्स के अंदर, मैमेलिया, ठीक है। देन यू हैव, एक सेकेंड, यस, फाइलम और डिवीजन। फाइलम इन केस ऑफ एनिमल्स एंड डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट। अगर क्लासेस के कॉमन फीचर्स है तो वो बनाता है एक फाइलम। एनिमल्स में हम लोग उसको फाइलम बोलते हैं, प्लांट्स में हम लोग उसको डिवीजन बोलते हैं, करेक्ट। वी बिलोंग टू द फाइलम कॉर्डेटा। देन फाइनली आता है आपका किंगडम। द हाईएस्ट टैक्सॉन और कैटेगरी इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज किंगडम। इट इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड फाइला। प्लांट है तो उसके अंदर डिविजन्स होंगे, और एनिमल है तो उसके अंदर फाइलम होंगे, करेक्ट। हमारा किंगडम कौन सा है, किंगडम एनिमेलिया, और प्लांट्स का किंगडम कौन सा है, किंगडम प्लांट्स, प्लांटे, ओके। अब ये सेम चीज हमने देखी, मैंने बोला था कि हम लोग ह्यूमंस के टर्म्स में डिस्कस करेंगे। तो इफ आई स्टार्ट फ्रॉम किंगडम, किंगडम में क्या है हमारा, वी बिलोंग टू द किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया। एनिमेलिया और प्लांट्स के अंदर डिफरेंस क्या है, प्लांट्स के नॉट, जनरली अगर मैं बोलूं तो ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन मूव बिलोंग टू द किंगडम एनिमेलिया। तो जो आपने चार्ट बनाया है ना, उसमें किंगडम के बाजू में लिखिए एनिमेलिया, और उसके बाजू में आप लिखिए व्हिच कैन मूव ऑन देयर ओन। तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे किंगडम का, कि एनिमल्स को हमने क्यों कैटेगराइज किया एनिमल्स की तरह, बिकॉज वो अपने आप मूव कर सकते हैं, दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ मूविंग ऑन देयर ओन। तो किंगडम लिखिए, उसके बाजू में एनिमेलिया लिखिए, उसके बाजू में लिखिए कैन मूव ऑन देयर ओन। मैम व्हाट अबाउट डोमेन? डोमेन हमारा, सी इट इज ओके, सो डोमेन आता है हमारा बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन, ठीक है, विच डोमेन के अंदर जब मोनेरा प्रोटिस्टा था ना, तो वो तब डोमेन दिया गया था। तो देयर इज सम 5 किंगडम, 3 डोमेन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। वो तो जब आपको वो पढ़ाऊंगी ना तब आएगा। उसमें कुछ सेग्रीगेशन था कि बैक्टीरिया एक डोमेन आ जाएगा, प्लांट एक डोमेन है और एनिमल एक डोमेन है। तो व्हेन यू गो फॉर अ जनरल क्लासिफिकेशन, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर किंगडम, क्योंकि हमारा बेस किंगडम से स्टार्ट होता है। आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, इनका डोमेन बनाया गया था, ठीक है, कि यूनिसेलुलर बैक्टीरिया का एक डोमेन होगा, मल्टी सेलुलर का एक डोमेन बनेगा, उसके अंदर फिर सारे एनिमल्स को डाला गया था। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, मोनेरा। हाँ करेक्ट, ये मोनेरा का था। तो जब उस टाइम का क्लासिफिकेशन दिया गया था ना, तब डोमेन आया था, ठीक है। तो हम लोग एज सच किंगडम से स्टार्ट करते हैं। किसी भी, अगर आप हायरार्की देखोगे ना, तो डोमेन एग्जिस्ट बट योर किंगडम्स विल बी यूज्ड, ठीक है। तो पहला किंगडम लिखा सबने, एनिमल लिखा, एनिमल के बगल में लिखा कि विच कैन मूव ऑन देयर ओन। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या है हमारा, फाइला और फाइलम। Which phylum do we belong to? We belong to Chordata, correct? Chordata का phylum का मतलब क्या हुआ? They have a backbone.
कॉर्डेट्स का मतलब ही क्या है कि उनके पास बैकबोन है। नॉन कॉर्डेट्स कौन से होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास बैकबोन नहीं है, ठीक है। तो कमिंग टू द किंगडम कॉर्डेटा, यू हैव टू राइट दे हैव अ बैकबोन। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। कॉर्ड फाइला के बाद में क्या आएगा? क्लास। कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं हम लोग? परफेक्ट। मैमेलिया का फीचर क्या होता है कि वी हैव फर और हेयर। अगर एनिमल्स है तो उनके अंदर बहुत फर होता है, जैसे डॉग के अंदर यू कैन सी नो दे हैव फर्स, कैट में भी होता है, एंड ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस के अंदर हेयर होता है। सो इधर फर और हेयर इज प्रेजेंट एंड दे हैव मैमरी ग्लैंड्स और मिल्क ग्लैंड प्रेजेंट होता है। दैट विल कम टू योर क्लास। लिखा सबने? Yes, ma'am. ठीक है। फिर आता है ऑर्डर। ऑर्डर में आएगा प्राइमेटा, PRIMATA, प्राइमेटा। प्राइमेटा का मतलब क्या होता है कि हमारे उन ऑर्गेनिजम्स जिनके पास कॉलर बोन होता है। यू नो व्हाट इज अ कॉलर बोन, राइट? No, हाँ, तो जैसे हमारा कॉलर बोन होता है वैसे उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर हर दिस थिंग प्राइमेटा के अंदर कॉलर बोन प्रेजेंट होता है। एंड दे हैव ग्रास्पिंग फिंगर्स। व्हाट इज ग्रास्पिंग फिंगर्स? मतलब हम उन फिंगर्स को यूज करके किसी चीज को पकड़ के ला सकते हैं। वी कैन ग्रास्प समथिंग विद आवर फिंगर्स। सो वो आएगा हमारा ऑर्डर के अंदर। प्राइमेटा वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास कॉलर बोन है और जिनके पास ग्रास्पिंग फिंगर्स होते हैं। क्लियर है? Yes, ma'am. yes, ma'am. ओके। नेक्स्ट हम लोग आएंगे फैमिली पे। फैमिली में हमारा है होमोनिडे, करेक्ट? होमोनिडे के अंदर क्या होता है? दे आर द प्राइमेट विथ फ्लैट फेसेस, ठीक है, और 3 डायमेंशनल विजन है हमारी। दैट मीन्स हम लोग सारा कुछ 3 डायमेंशन में, मतलब वो जो प्राइमेट सॉरी Hominidae. प्लीज। ओके, सो व्हेन आई कम टू द फैमिली होमोनिडे के अंदर क्या क्या होता है? दे हैव primates with flat faces and they have a 3-dimensional vision. Okay? Ma'am, can you explain family one more time? Sure. फैमिली हमारा क्या है? तो वो प्राइमेटा, उनको हमने सेग्रीगेट करके होमोनिडे में डाला है जिनके फेसेस फ्लैट हैं, ठीक है? यस, क्लैविकल इज कॉलर बोन। पूजा, यू आर राइट। ओके, सो जिनके फेसेस कैसे होते हैं? फ्लैट फेसेस। इफ यू सी योरसेल्फ, इट इज नॉट, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि एकदम चपटा होता है, बट अगर सामने से देखोगे तो सीधा फेस दिखेगा। तो दोज प्राइमेट्स विच हैव फ्लैट फेसेस और 3 डायमेंशन में उनकी विजन होती है, उनको हमने होमोनिडे बोला है, ठीक है? Okay, ma'am. Thank you. नेक्स्ट इज जीनस। जीनस क्या है हमारा? होमो। तो वो होमोनिडे जो अपराइट पोर्शन में होता है, जिसका पोस्चर अपराइट है, दैट मींस वी कैन वॉक, ओके, वी कैन वॉक ऑन 2 legs. They are called as upright posture वाला। they have a straight backbone, they can walk on 2 legs. Plus एक और चीज क्या होती है? उनके ब्रेन्स बहुत लार्ज होते हैं, so they had large brains and they had an upright posture. Okay. Last is your species. हमारा species कौन सा है? सेपियन। सेपियन के अंदर क्या होता है? We have large forehead, हमारा forehead बड़ा है, ठीक है, and skull bone जो है ना वो comparatively thin हो रही है। उनकी बहुत ज्यादा बड़ी थी, हमारी थोड़ी पतली है, प्लस वी हैव अ लार्ज फोरहेड। क्लियर? Ma'am, please repeat species one more time. श्योर। स्पीशीज कौन सा है? हमारा स्पीशीज है सेपियंस का। तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेपियन स्पीशीज? दैट वी हैव अ लार्ज फोरहेड। जो फोरहेड पार्ट होता है हमारा वो बड़ा है कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स। 1 सेकेंड, जो स्कल बोन है हमारी वो थोड़ी पतली है। क्लियर है आप लोगों को? Yes, ma'am. So we have thin skull bone and a large forehead. This is the characteristic of the categories that we are talking about in terms of humans. अगर मैं human का बोलूं तो आप सबको पता होना चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ खत्म कर रहे हैं और क्या फीचर्स हैं। अगर मैं फट से बोलूं एनिमेलिया, तो वो ऑर्गेनिजम्स which can move on their own. अगर मैं किसी को पूछूं ऑर्डर, तो ऑर्डर कौन बताएगा मेरे को? प्राइमेटा क्या होता है? Collarbone, grasping finger. Grasping. ओके, आयुषी ने डाउट पूछा है, उसको जीनस जानना है। कोई बता सकता है आयुषी को जीनस क्या होता है?
Our genus is Homo. Homo. Ma'am, Homo. Yes. They have upright portion, large brains. They can walk. Yes, perfect. Ayushi, did you understand beta? They have an upright posture and they have a large brain. Okay. Next, if I ask somebody phylum बताएगा कोई मेरे को? Ma'am. बोलिए नाम. Subhashish. Ma'am. Yes, ma'am. Yes, Subhashish, tell me. Ma'am, they are chordata. Yes. Ma'am, have backbones. Okay, perfect. If I talk about class, Ma'am. Ma'am. Mammalia. Mammalia. okay. They have mammary glands. They have milk glands and एक और चीज है. Ma'am, For our fur or hair. Anything. Hair. Either can be fur or can be hair. So I'm considering कि हम लोगों को humans का concept एकदम clear है सबको. कोई कभी भी पूछेगा हमारा human का evolution, we all should be able to say starting from the kingdom, ending to the species क्या है. Correct? Yes, ma'am. Perfect. Yes, ma'am. Good. यार ज्यादा बच्चे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, मुझे सेम आवाजें वापस सुनाई दे रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? बाकी के बच्चे कहाँ हैं? रंजन, ओके, हिमांशी, अफीफा, डिड यू अंडरस्टैंड? रंजन, यस, आपको समझ में आया? ठीक है, मैं पूछूंगी यार क्लास के एंड में क्वेश्चन. और कल किसी ने मुझसे पूछा था कि एलिफेंट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो इस टेबल के अंदर नहीं है, सो यू गाइस कैन राइट इट डाउन. इट इज कॉल्ड एज लॉक्सोडोंटा. LOXODONTA, लॉक्सोडोंटा. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज. नाउ अगर मैं अफ्रीकन एलिफेंट की बात कर रही हूँ, विच इज वेरी फेमस, इट इज लॉक्सोडोंटा अफ्रीकैनस. यस, it is I'll type the spelling for you guys. Loxodonta africanus. Africanus is basically for the African elephant. Yes, it is. It can vary depending on कौन सा elephant है, but Loxodonta is the genus name for your elephants. Clear? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. मैग्नीफेरा इंडिका, कल बहुत डेप्थ में चर्चा की थी ना हमने इसके बारे में. तो मैग्नीफेरा इंडिका क्या है हमारा? मैंगो. ठीक है. सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो, आलू, सबको पसंद होगा. Yes. हाँ, खाना याद आ रहा है, आलू पराठा. नेक्स्ट, सोलेनम नाइग्रम, दैट इज योर नाइट शेड. पैंथेरा लियो, लायन. पैंथेरा टाइग्रस, दैट इज टाइगर. मतलब एक चीज है कि दोनों लायन एंड टाइगर बिलोंग टू द सेम जीनस. ठीक है, लियो है तो लायन एंड टाइग्रस है तो टाइगर. एंड होमो सेपियंस इज नथिंग बट योर मैन. आई एम गिविंग यू गाइस 2 minutes. प्लीज ही लर्न कर लीजिए. मैंने स्क्रीन शेयर करके रखा हुआ है सो दैट आई एम गोइंग टू आस्क यू गाइस द सेम क्वेश्चंस अगेन. मुझे सबको ये नाम याद करने हैं अभी. कमिंग बैक टू नाइट शेड. नाइट शेड भी एक तरीके का प्लांट है. ठीक है, इट इज अ फ्लावरिंग प्लांट और मेडिसिनल यूज के लिए यूज होता है. तो इट बिलोंग्स टू द सेम जीनस लाइक योर पोटैटो, इसलिए हम उसको सोलानम बोलते हैं. बट इंस्टेड ऑफ गिविंग अस अ फ्रूट और अ वेजिटेबल, वो पोटैटो नहीं देता है. इट इज यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पसेस. ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो अ प्लांट. क्लियर? हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. पूजा को क्लियर है? बाकी सबने लर्न कर लिया है? मैं चेंज करूं पेज को? Yes, ma'am. Yes. परफेक्ट. ओके, वैसे तो बड़े हल्के हल्के से थे. ओके, बताइए मेरे को ये सोलानम ट्यूबरोसम. Potato. Potato. ओके, नाइट शेड. कोई एक ही बच्चा बताएगा, नाम बोल दो. Solanum nigrum. ओके, आकाश, लायन को क्या बोलते हैं? Panthera leo. Panthera leo. परफेक्ट. कावेरी, टाइगर. Tigris. ओके, पैंथेरा टिग्रिस. इंसानों का तो सबको पता है. Homo sapien. Homo sapiens. मैंगो. Magnifera indica. Indica. एलिफेंट. Loxodonta. Loxodonta. यस, लॉक्सोडोंटा. अगर मैं नॉर्मल पूछ रही तो अफ्रीकन एलिफेंट को लॉक्सोडोंटा अफ्रीकैनस. ठीक है, अब हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फिर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे. क्लियर?
Yes, ma'am. Okay, so coming back in short, Yes. what is organisms? जिनके अंदर मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइज्म, अगर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है तो हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, उनको हम लोग लिविंग बोलेंगे. Yes, ma'am. अभी चलो एक नया टर्म आ गया, होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस क्या होता है? Balance. बॉडी बैलेंस. मतलब मेटाबोलाइट का बैलेंस होना चाहिए. ठीक है, ठीक है. कभी भी किसी भी टाइम पे बॉडी के अंदर कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म का बैलेंस सेम होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, ग्रोथ क्या होता है? इरिवर्सिबल चेंज. एक बार ग्रो कर गए तो फिर छोटा थोड़ी हो सकता है. मतलब आज मैं 5 फुट 3 इंच हूँ तो कल मैं 4 फुट की थोड़ी हो सकती हूँ. पॉसिबल है? No, ma'am. हो सकता है ना. That is a growth is a reversible change. Irreversible change. मतलब एक बार ग्रो कर गए तो वापस पीछे नहीं जा सकता. ठीक है. How do you grow? There are two things. Increase in cell. Or elongation of cell. Perfect. Increase in cell number है बेटा. तो इधर सेल मल्टीप्लाई करके नंबर बढ़ाएंगे या फिर सेल का साइज इंक्रीज होगा? Ma'am, elongation. Size of the cell. It is not only lengthwise, it could be girth or width also. ठीक है? Okay. Hear me properly. पूजा, आवाज आ रही है आपको? Yes, ma'am. परफेक्ट. नेक्स्ट, सिस्टमैटिक्स में हमने 4 चीजें पढ़ी थी. आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर. आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? Identify an organism. यस. कौन सा लेवल है उसका, कौन सा रैंक है उसका. रैंक हमने पढ़ा ना अभी, टैक्सोन पे डिपेंड करता है. Taxonomic hierarchy. क्लासिफिकेशन, यस. क्लासिफिकेशन क्या होता है? उसको अरेंज करना उस हायरार्की के अंदर. ठीक है. नॉमेनक्लेचर, नामकरण, सिंपल नाम देना. देयर आर 2 काइंड ऑफ नॉमेनक्लेचर. लोकल नाम हो गया और एक साइंटिफिक नेम हो गया. साइंटिफिक जिसमें हम लोग बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे. अगर मैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात करती हूँ तो किसका नाम याद आता है? Homo sapiens. Carlos Linnaeus. मतलब एग्जाम्पल हुआ बच्चा. कार्लस लिनियस का नाम याद आना चाहिए. अगर नेक्स्ट पॉइंट देखोगे तो वही है. द सिस्टम ऑफ नेमिंग with 2 components or epithets, that is generic and specific. Generic मतलब जीनस का नाम, specific मतलब specific species का नाम. किसने दिया था? कार्लस लिनियस. Perfect. The sequence of arrangement of these taxonomic categories in their order is called as hierarchy. और हर एक लेवल को हमने बोला था taxon. Term taxon was given by term taxon was given by मैं आवाज नहीं आ रही. मैम ICBN. कौन से ईयर में? 1956. 64 में क्या किया था मेयर ने? मेयर ने 64 में क्या किया था? नम्रता बेटा, ICBN in 1956 correct. So Namrata, please correct बच्चा. It is Mayer who defined taxon and the term taxon was given by. आप लोग सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए so that you can hear me. मेरी अकेले की आवाज आनी चाहिए. ICBN 1956 टर्म टैक्सॉन डिफाइन नहीं किया था, सिर्फ नाम दिया था. डिफाइन मेयर ने किया था 64 के अंदर. क्लियर है? The smallest taxon is called as species. Species सबसे छोटा रैंक या सबसे छोटा टैक्सॉन होता है. क्लियर? Yes, ma'am. चलो अभी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. मेरे को इसका आंसर सब चैट पे देंगे, कोई बात नहीं करेगा. आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द ओनली taxonomic category that has a real existence. Phylum है, species है, genus है या kingdom है. Take 30 seconds and everybody will reply on the chat. I've started getting messages. Okay, नैन्सी ने आंसर किया है, आकाश ने आंसर किया है.
परफेक्ट, काफी लोगों के सही आंसर्स हैं, आई एम हैप्पी। गूगल मत करके देना आंसर, सोच के देना। ओके सूरज, कैन यू टेल मी द रीजन कि आपने आंसर क्या लिया और क्यों लिया है, कि आपने क्यों सोचा है कि ये आंसर होगा? Okay, most of you have given the right answer to me. The answer is species. Why are we saying कि species का independent existence या real existence है? क्योंकि at the end of the day आप किसी भी organism को देख रहे हो तो वो एक species ही तो है। जीनस तो एक तरीके का बस क्लासिफिकेशन है कि सारे ये ऑर्गेनिजम्स या ये स्पीशीज सिमिलर है तो उनको एक जीनस में डाल दो, वो हमारे रेफरेंस के लिए है, बट एक्चुअल एग्जिस्टेंस जिसका है ना वो स्पीशीज का ही है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर वुड बी बी, स्पीशीज। ओके सूरज, डिड यू अंडरस्टैंड? You can reply on the chat box. Beta, did you understand why the answer is species and not genus? Okay, next question. Biosystematics aims at identification and arrangement of organisms on the basis of cytological, cyto मतलब cell, ठीक है? तो cell cytological characteristic, the classification of organism based on morphology मतलब appearance, morphology मतलब दिखता कैसा है कोई organism, delimiting various taxa of organism and establishing उन दोनों tax के बीच मतलब taxon के बीच का relationship, या फिर और classification based on evolutionary history and establishing their phylogeny. phylogeny का मतलब होता है appearance कि external characteristics कैसे हैं, on the totality of various parameters from all fields of studies. कौन बताएगा मेरे को इसका आंसर? So I already have some 2-3 answers with me. Okay, I'm waiting. Let others also answer. सोच के आंसर कीजिए, फिर मैं सही आंसर बताऊंगी इसका। मेजॉरिटी में मेरे को दो ही आंसर दिख रहे हैं, या तो ए दिख रहा है या डी दिख रहा है। अब मेरे को कोई बताएगा इसका रीजन क्या है? एक जना ए का बताएगा, एक जना डी का बताएगा, फिर मैं बताऊंगी असली आंसर क्या है। कृति ने दिया है आंसर ए, तो कृति बेटा विल यू टेल मी द रीजन व्हाई यू ऑप्टेड फॉर ए? Anybody, you can give me a reason, either type it out or you can talk. Anybody apart from Krati also? Nancy, Astha? Ma'am, biosystematic deals with the identification and arrangement of organisms. हमने अभी तक पढ़ा है ना, उस प्रोसेस में you have to understand it is based on your evolutionary characteristics, how a species evolves into another. If you remember, we have learned this statement, evolution of species. Okay, so when you're talking about biosystematics, it is always evolutionary history. This point is extremely important, evolutionary history. ठीक है, and establishing their phylogeny on the totality of various parameters. मतलब कि you are considering many parameters when you classify them, but उनकी evolutionary history पे हम उसको classify करते हैं। ये concept है कि एक species दूसरे species से evolve होके आएगा। Okay, so this biosystematics is the correct answer would be D, that it is based on evolutionary history and then you establish their phylogeny. Clear? Yes, ma'am. ठीक है, तो identification and arrangement is correct, but the point that it is based on cytological character is not correct. It is based upon evolutionary character. History किसी आंसर में मिल रहा है तो वो आपका आंसर है, ठीक है? Okay. Practical purpose of taxonomy. 1 second, somebody has given a question. So, practical purpose of taxonomy. अच्छा, just a second. Somebody. Option 5 तो है ही नहीं. Option 5 कैसे? हाँ, option C.
practical purpose of taxonomy or classification is to know the evolutionary history, to explain the origin of organism, to facilitate the identification of unknown species or identification of medicinal plant. बताइए, 2 मिनट दे रही हूँ सबको को. अरे क्या बात, कॉपी पेस्ट कर रहे हो क्या आप लोग? Ma'am, because taxonomy gives the classification, identification, characteristics and nomenclature of organisms. Yes. That's why. So it can give the identification of unknown species. perfect. See the whole funda, ठीक है, to do this taxonomy is कि मैं कहीं पर भी बैठी हूँ in the entire world, if I am telling कि यार ये particular organism, ठीक है, it is Solanum tuberosum, that means अगर वो potato है, तो any part of the world should be able to understand कि that is potato only, correct? So basically when you are finding new things, when you are trying to find new plants, new animals, new organisms, हम लोग उसको identify करके उसको एक particular place दे सके हमारे classification में, वो purpose है taxonomy का, ठीक है? So basically you are trying to find more and more new things and you are trying to classify them. So it is to, you know, facilitate the identification of unknown species. कि जो unknown है उसको कहाँ डालना है? Based on what? Based on characteristics. क्या characteristics? Evolutionary characteristics, physical appearance, phylogeny. हम सब कुछ को consider करेंगे और उसको एक particular जगह देंगे उस classification में. प्रणति, okay, प्रणति, can you hear me? Yes, ma'am. Now. ठीक है, तो इसका मेन फंडा यही है कि यू आर ट्राइंग टू सी कि यार ये ऑर्गेनिज्म है, उसके ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अभी मैं उसको किधर डालूं क्लासिफिकेशन में और उसको क्या नाम दे सकती हूँ, ठीक है? सो इट्स इसीलिए द मेन पर्पस ऑफ अ टैक्सोनॉमी इज टू आइडेंटिफाई व्हाट इज नॉट नोन एंड देन गिव अ नेम व्हिच इज रिकॉग्नाइजेबल बाय द एंटायर वर्ल्ड. मतलब कि अगर मैंने किसी चीज को एक नाम दिया है तो पूरी दुनिया में उसका वही नाम रहेगा. There cannot be a different name for the same particular organism. Clear? Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Two plants can be conclusively said to belong to the same species. मतलब दो particular plant एक ही species के हैं अगर 90% से ज्यादा similar genes हैं, they can reproduce freely with each other and form seeds, they have same number of chromosome or they look similar and possess identical metabolites. इसका बहुत सरल आंसर है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसी क्लास के अंदर, तो मुझे सबका आंसर करेक्ट चाहिए. ये कॉपी पेस्ट तो नहीं मार रहे हो या मेरे बच्चे सच में बहुत इंटेलिजेंट है? वेरी गुड. नो मैम, नैंसी नो किसके लिए? कॉपी पेस्ट के लिए बोल रहे हो? No, ma'am, we are not doing copy paste. Okay. Good, good, good. I'm happy. So basically हमने अभी डिस्कस किया था ना थोड़े टाइम पहले कि if two organisms belong to the same species, मतलब अगर दो प्राणी एक ही स्पीशीज के हैं तो वो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, करेक्ट? तो if two plants are belonging to the same species, उसका सिंपल मीनिंग है कि वो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और वो सीड्स बना सकते हैं. क्लियर है? Yes, ma'am. ये सब कुछ हमने अभी डिस्कस किया है. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. ओके, बेस्ड ऑन द, okay, I cannot see my own question. Can somebody read it loud for me? Question के पहले आंसर रेडी है. Classification of organisms based on evolutionary as well as genetic relationship is called A. Yes. Numerical taxonomy, B. Genetics, C. C. Biosystematic, Biosystematic और D. Cladistic. Cladistics. अब बताओ मेरे को इसका आंसर. थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, डोंट थिंक इट इज गोइंग टू बी सिंपल. मैं बोल रही हूँ सब गलत हो, वापस चांस दे रही हूँ. अब बताओ असली आंसर क्या है. बायोसिस्टमैटिक इज द रॉन्ग आंसर.
आई एम टेलिंग. अभी मैं वापस बोलूंगी, बायोसिस्टमैटिक अभी पढ़ाया था ना. क्या होता है? एवोल्यूशनरी एज वेल एज फाइलोजेनिक हिस्ट्री होती है ना. फाइलोजेनिक रिलेशनशिप मतलब फिजिकल अपीयरेंस. अभी एक डिफरेंस समझो, जेनेटिक और फाइलोजेनेटिक. जेनेटिक का मतलब डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, इसमें कितनी सिमिलैरिटी है. फाइलोजेनेटिक मतलब वो एक्सप्रेशन ऑफ द जीन. अगर मैं नॉर्मल बात करूं, ठीक है, तो इफ आई से कलर ऑफ द आई ले लो, किसी का ब्लैक है, किसी का ब्राउन है, किसी का ब्लू ग्रीन भी होता है ना. तो वो क्यों है? उसका बेसिक प्रिंसिपल पीछे यही है कि उसके जीन के अंदर ऐसा प्रोग्रामिंग है, बट वो अपीयरेंस कैसा है? कलर ऑफ द आई का. ठीक है, तो फाइलोजेनी जो होता है वो हमारा मतलब बोलते ना फिजिकल अपीयरेंस, यानी वो कैरेक्टरिस्टिक दिखता कैसा है, और जेनेटिक उसका बैकग्राउंड मतलब उसका जीन कैसा है. तो ये दो चीज का अंतर है. ठीक है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बायोसिस्टमैटिक्स, इट इज एवोल्यूशनरी प्लस फाइलोजेनेटिक. व्हाई फाइलो? बिकॉज हम लोग जो देखेंगे उसी को कैटेगराइज करेंगे ना. हमने थोड़ी हर ऑर्गेनिज्म का, अभी पॉसिबल है कि हर ऑर्गेनिज्म का डीएनए स्टडी किया है, क्रोमोसोम स्टडी किया है. पहले तो हमने कैसे क्लासिफाई किया उनको कि इसका एवोल्यूशन ऐसे हो सकता है और इसके फिजिकल फीचर्स ऐसे हैं. So it is evolutionary plus phylogeny. Okay, but this question says it is evolutionary plus genetic relationship. Okay, it is not numerical taxonomy. Taxonomy is just grading. It is numerical. वो नहीं है. Phonetics is only physical characteristics, which is also wrong. Biosystematics we know is genetic plus phylogeny. तो क्या बचा? Last option is cladistics. So this question, no, if you don't see, पहली बार देख के मैं भी गलत आंसर देती. I can tell you because I know about it. So if such a question comes, you will go through every option. हमें पता है कि biosystematics is evolutionary plus phylogenetic. तो वो option हट गया, which was the most susceptible answer. फिर phonetics पे आओ, तो that is physical characteristic, वो भी हट गया. Numerical taxonomy based on numericals you have categorized into different classification, वो भी गलत है, rank दिया है आपने. तो बचा क्या? Cladistics. Cladistics is your this thing, evolutionary relationship plus genetic relationship. Clear है? Yes, ma'am. Yes, I want Yes, ma'am. everybody to remember what is cladistic. ये क्वेश्चन देने का मतलब ही यही था कि आपको पता होना चाहिए कि नया टर्म क्या है. ठीक है. Also, हमने अभी पूरा 2-3 क्लास में सिर्फ बायोसिस्टमैटिक्स ही पढ़ा है, बट यू स्टिल अंडरस्टैंड दैट टू गेट टू देयर वी नीड टू सॉल्व मोर एमसीक्यूज. हमें कॉन्सेप्ट पता है, बट कीवर्ड्स अब पता चले आपको कि बायोसिस्टमैटिक के कीवर्ड्स क्या है. एवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स, फाइलोजेनिक. Yes. Now we know the keywords of biosystematics are these. Clear? Yes, ma'am. So this is one unit of your chapter. अभी एक और unit बचा है which is called as taxonomic aids. मतलब कि botanical garden, zoological park, herbarium, ये सब चीजें क्या होती है, ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे. बट उसके पहले ये जो हमने यूनिट किया है, like दो starting from the first class till now, is that clear to everybody? Yes, ma'am. Any single doubt, anybody please ask and finish it, because ये पूरा एक section हमारा खत्म हुआ है. Now we are jumping to the next section. So is it clear to everybody? Any simple small doubt also, you guys please clear it. Full forms बोला है रंजन ने कि full forms में उनको problem है. Okay. Now full forms मतलब कि किसने nomenclature दिया है. Okay. So उसमें हमारे पास 4 codes हैं. First is ICBN, that is your code for botanical nomenclature. Simple है. Plants को nomenclate करने के लिए, plants का नामकरण करने के लिए जो code use करते हैं वो ICBN है. Viruses के लिए IC. Okay. Viruses के लिए we have ICVN, that is International Code for Viral Nomenclature. अभी जो कोरोना चल रहा है ना बहुत ज्यादा, तो COVID-19 we have given a name, right? Why? Because ICVN मतलब we have certain codes how to name a virus. So according to ICVN we have given a name to that. ICZN, International Code for Zoological Nomenclature. That means all animals का nomenclature is done according to that code. And ICBN # or /ICNV, it
इट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर और नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। तो प्लांट्स का अलग है, एनिमल्स का अलग है, वायरस का अलग है और बैक्टीरिया का अलग है। ये 4 कोड्स हैं, ठीक है? क्लियर है? मैम Yes, ma'am. Yes, tell me. ICBN/ICNB is one of the same or different from each other? This is same. ये साथ में यूज होता है मोस्टली। क्वेश्चन आप पेपर में भी देखोगे ना तो साथ में आएगा टू अवॉइड कंफ्यूजन। क्लियर? Yes, डाउट ma'am. क्लियर हुआ? Yes, ma'am. अभी और किसी का कोई डाउट? एनीथिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट वी हैव रेड टिल नाउ? Anything, anybody? Now I will jump to a different section only. तो ये वाला पार्ट है। अभी हम कंसिडरिंग के सबको अच्छे से आता है और मैं उठा करके कोई भी क्वेश्चन पूछूंगी अगली क्लास में तो आना चाहिए। नो डाउट्स, वेरी गुड। रंजन के डाउट्स क्लियर है, पूजा को डाउट नहीं है, बाकी सबका क्या है? Anybody else? Any doubts? I'm considering everybody is clear. Nancy is clear. If only ICBN तो back ये botanical हो जाएगा सौम्या. It will be botanical nomenclature. And binomial nomenclature one more time. Binomial ठीक है। Binomial by का मतलब होता है दो, nominal मतलब नेम, ठीक है? दो नाम का nomenclature, दो नाम का नामकरण। मतलब कार्लस लिनियस गेव अ वेरी सिंपल वे कि हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे, नाम देंगे, बट सिर्फ दो नाम रहेंगे। पहला नाम इज गोइंग टू बी योर जीनस, दूसरा नाम होगा स्पीशीज का, ठीक है? तो पहला नाम जो जीनस का है एंड दूसरा स्पीशीज का है, इनको लिखने का एक तरीका दिया गया था एंड दिस नॉमेनक्लेचर वाज ऑन अ बुक। कौन सी किताब के ऊपर था वो? सिस्टेमा नेचुरे, अगेन कार्लस लिनियस की ही किताब थी। तो उसने क्या बोला? बहुत सिंपल है, पहला नाम होगा जीनस का, जीनस का पहला नाम, उसका फर्स्ट लेटर वुड बी कैपिटल, बाकी सारा स्मॉल। स्पीशीज पूरा का पूरा स्मॉल लेटर्स होगा, कैपिटल में नहीं होगा, ठीक है? या तो तुम इसको पूरा इटैलिक में लिखो, मतलब you know how italic writing is, right? कंप्यूटर यूज किया है सबने। Yes. So there is bold, underline and italic. Italic मतलब it will be a little styled writing. If you are not using italic, तो अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन कैसे करेंगे? जीनस को अलग से अंडरलाइन करेंगे और स्पीशीज को अलग से अंडरलाइन करेंगे, दोनों के बीच में गैप होगा। एंड थर्ड एब्रीविएशन वुड बी कि ये एक्चुअल नाम किसने दिया है। तो अगर मैं मैग्निफेरा इंडिका यानी मैंगो की बात करूं तो मैग्निफेरा इंडिका लिन डॉट, लिन का मतलब क्या है? कार्लस लिनियस। इट इज एन एब्रीविएशन ऑफ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने वो नाम दिया है, ठीक है? अब मोस्टली वी डोंट यूज द एब्रीविएशन एनी मोर, इट वॉज यूज वेरी इनिशियली। सो मोर और लेस नाउ व्हाट यू डू इज जीनस का नाम, स्पीशीज का नाम, फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस इज कैपिटल, इट इज रिटन इधर इन इटैलिक और अंडरलाइन, ठीक है? Yes, ma'am. इज इट क्लियर? Clear. आज का आपका डाउट था ना? ओके, सो आई एम अज्यूमिंग कि सारा सबका डाउट क्लियर है अभी। क्लियर? Yes, Anybody else? Any other doubts? No, right? I'm just running through the slides. Have a look. ये नाम सबको याद आने चाहिए, अभी अच्छे से याद है, हफ्ते भर बाद भूलना मत। मैं पूछूंगी जूलिया हंसले ने क्या किया था हफ्ते भर बाद। Okay, extremely good. Please jot down the important points of this chapter, the names at least and the charts. These are most important. भूलने का बहुत चांस होता है, and full forms. I hope all the questions are also clear. Next we have taxonomic aids. I will just tell you in brief कि क्या होता है, डिटेल में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? What Okay, is ma'am. taxonomical aid? Aid का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो हेल्प करे। हेल्प करे किसमें? पढ़ने में। तो टैक्सोनॉमिकल मतलब हायरार्की या फिर क्लासिफिकेशन पढ़ने के लिए क्या चीजें हेल्प करती है। अभी हमको पता है व्हाट आर वी स्टडिंग, ये तो प्लांट है या एनिमल है। सिंपल, प्लांट कहाँ मिलेगा आपको? फॉरेस्ट में। एनिमल्स
या तो सेम चीज फॉरेस्ट में मिल जाएंगे, या इफ यू आर कल्चरिंग देम एग्रीकल्चर में आपको प्लांट्स भी मिलेंगे. सो टू क्लासिफाई दीज ऑर्गेनिजम्स द मोस्ट important taxonomic aids are a herbaria, botanical garden जहाँ पे आपको बहुत सारा ना डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लांट्स मिलेगा, म्यूजियम्स जहाँ पे हमने प्रिजर्व किए हैं, zoological parks and keys. ये 4-5 चीजें, जो 5 चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दे हैव डिफरेंट यूजेस. ये हम पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे कि हर्बेरिया में एक्चुअली क्या स्टोर होता है, बोटानिकल गार्डन्स में क्या होता है, म्यूजियम्स में क्या स्टोर होता है, जूलॉजिकल पार्क्स में क्या मिलता है और कीज में क्या मिलता है. दीज 5 टर्म्स नो आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है कहीं ना कहीं से, हर्बेरियम या फिर ये बोटानिकल गार्डन्स या कीज के ऊपर तो मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलते हैं. क्लियर है? Yes. So these taxonomical aids are the ones which help us to study taxonomy. ठीक है? These are different kind of क्या बोलते हैं, storage is available for plants and animals. और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि किस टाइप का प्लांट या किस टाइप का एनिमल कहाँ स्टोर होता है, या फिर कहाँ पे हम लोग उनको स्टडी कर सकते हैं. क्लियर? Ma'am, they are used for preserving animals, wildlife. Yes, preserving. Yes, zoological park में क्या होगा? They are preserved in their natural habitat. Correct? मतलब कि हम एनिमल्स को उनका फ्रीडम भी देते हैं, स्पेस भी दे रहे हैं. एंड जैसे जू हो गया, जू क्या हो गया, यू आर केजिंग एन एनिमल. करेक्ट? तो उसमें क्या होगा, यू आर काइंड ऑफ ट्राइंग टू प्रिजर्व देम. एक होता है बॉटनिकल गार्डन्स, उसमें क्या होगा, यू आर प्रिजर्विंग द प्लांट्स इन द नेचुरल हैबिटेट. मतलब वो प्लांट को हम लोग अलाउ कर रहे हैं वैसे का वैसा ग्रो करने के लिए. Like wildlife sanctuaries. Yes, like wildlife sanctuary, national parks. उसमें क्या है, you are not disturbing the environment at all. Zoological park में you are disturbing their environment. Okay, so they get the natural environment in wildlife sanctuary हो गया, या फिर आपका ये reserve हो गया. But अगर आप zoological park की बात कर रहे हो तो उसके अंदर you are trying to preserve, you are keeping them caged. Okay, thank you. Okay, तो I will start I think tomorrow. 3 तो बज गया. I will start this complete thing tomorrow. कल हम लोग start करेंगे herbarium से. We will cover all of these and try to see कि हर एक में क्या क्या important points हैं. Clear? Yes. But कल तक I think आप लोगों का ये सारा topic अच्छे से हो गया. You should remember all of this, whatever has been taught. ठीक है? It's a sincere request. Please write it down. Biology इतना easy नहीं है. Theory जो है उनको हमको लिखना ही पड़ेगा. एक बार लिख लोगे सबको याद रह जाएगा. ठीक है? लिखी हुई चीज नहीं भूलता है कोई. ठीक है? तो ये सब लिख करके, एंड आई वुड सजेस्ट एनसीईआरटी है तो प्लीज ओपन अप एंड हैव अ ब्रीफ रीडिंग ऑफ एवरीथिंग. वी विल डिस्कस इन डिटेल फ्रॉम माय साइड टुमारो. ओके? ओके मैम. ओके फाइन. चलो. सो Thank you, ma'am. yes, Thank that's you, all ma'am. for the day. Thank you everybody. We will continue tomorrow, and tomorrow I want answers from everybody. Yes. Hi, Sifa, Nayan, Soumya, Yes, ma'am. Ayushi, Namrata, Nancy, Piyush नहीं था ना आज? Ma'am, I have given answers. अच्छा, हाँ, I know you've given. Pranti, I'm just saying bye to all of you. Bye, Okay, I'll ma'am. see you guys tomorrow.